Hello everyone, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching English, and in this video we have tried to solve the complete question paper of UPTGT English that was held on 7 August 2021। ये वीडियो सिर्फ आंसर की देने के लिए नहीं है बल्कि सारे क्वेश्चंस को डीपली कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करने के पर्पज से बनाया हुआ है ताकि आपको सही आंसर उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल सके। पूरी कोशिश की गई है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वेरीफाइड क्रॉस चेक करके आपको बताए जाएं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए। यू मे कंसीडर दिस एज ए ह्यूमन एरर बिकॉज दिस वीडियो हैज बीन मेड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपके कॉन्ट्रडिक्शंस हो, वो कमेंट बॉक्स में हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। सो इफ यू फील डाउटफुल इन सम ऑफ द आंसर्स वी कैन डिस्कस दीज थिंग्स इन कमेंट बॉक्स बिलो। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? William Shakespeare, True Love. True Love is very much written by William Shakespeare. It was a sonnet written by William Shakespeare. William Shakespeare, Carpe Diem. Carpe Diem was not in anywhere associated with Shakespeare. Carpe Diem को होरेस ने, रोमन पोएट होरेस ने यूज किया था। True Love is a sonnet number 116। सोनेट 116 को ही ट्रू लव कहते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। द कंप्लीट टाइटल इज फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड विलियम वर्ड्सवर्थ रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, सो इट वाज आल्सो रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द फ्रेगमेंट ऑफ द प्रील्यूड एंड इट वाज आल्सो पब्लिश्ड इन फ्रेंड इज ए जर्नल बाय कॉलरिज का जर्नल था फ्रेंड, उसमें भी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पब्लिश हुई थी और ये फ्रेगमेंट है द प्रील्यूड का बुक सेकंड एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1805। लाइन्स रिटन इन द कंप्लीट टाइटल इज लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग इज आल्सो रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एंड इट वाज पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेट्स 1798 and secondly in 1802। so the correct answer of this question is B. Next question, which work has been called by Shakespeare as the first heir of my invention? It was Venus and Adonis। ये शेक्सपियर की immature poem में से एक आती है, immature poem, and it was published in 1593। It is written in 6 line stanza, rhyming scheme है उसकी A B C C। So it was written in 6 line stanza and the complete number of stanzas are 199 stanzas and it was published in quarto form in 1593 by Richard Field। Hero and Leander by Christopher Marlowe, ये भी 1593 में पब्लिश हुई थी, थोड़ी दिन पहले। एंड वीनस एंड एडोनिस इसी की इमिटेशन में लिखी हुई थी, सो इट वाज रिटन इन इमिटेशन ऑफ हीरो एंड लिएंडर। Rape of the Lucrece was in 1594। It is in 7 line rhyme royal stanza। Next question, the characters Ophelia and Gertrude, it is not Gertrude, it is Gertrude, they are undoubtedly in Hamlet। One was beloved and other was beloved of Hamlet and Gertrude was mother of Hamlet। Next question, will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow। The above lines are from Solitary Reaper was published in 1807। True Love by Shakespeare। Unchangeable is also by Shakespeare and it is called sonnet number 109। So sonnet number 109 is also called the Unchangeable by Shakespeare himself। Lucy Gray by William Wordsworth। And Lucy Gray was not the poems included in the Lucy poems। Lucy Gray एक different poem थी। Lucy poems में 5 poems आती हैं लेकिन Lucy Gray उन 5 poems में से नहीं होती है। So the correct answer is C। Next question, what is the meaning of the word mercenary? The correct answer is the motive to earn money। Mercenary is concerned with making money, जो पैसा कमाने में ही लगा रहता है, that is called mercenary। An office without pay is honorary। So the correct answer is A। Lysander is a character in A Midsummer Night's Dream। The correct answer is A। He is in love with Eugeia's daughter हर्मिया। हालांकि पक जो इसको हिप्नोटाइज कर देता है, उसके इन्फ्लुएंस में ही फॉरगेट्स डॉटर हर्मिया, सो ही फॉरगेट्स हर्मिया एंड लव्स हेलेना। सो द करेक्ट आंसर इज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम
Answer A. Lysander is a character in A Midsummer Night's Dream. Next question. Identify the error part of the following sentence. Rajiv was happy that Sanjay and his sister were going. There is one clause, Rajiv was happy. Second clause, that Sanjay and his sister. Was is written according to Rajiv. Rajiv singular, was singular. That is correct. Second clause, Sanjay and his sister, they become the subject. Subject is plural, verb is singular. So यहाँ पे क्या होना चाहिए? Were. Sanjay and his sister were going on the same train. Rest is okay. So the correct answer is B. There lies an error in B option. Next question is, the correct spelling is undoubtedly encrypt. Encrypt means to convert some information or some data into a code ताकि unauthorized access prevent की जा सके. So it is to convert information or data into a code. A coded language में उसको convert कर देते so that you may prevent unauthorized access. हर किसी के बस की बात ना हो उस information को access करने के लिए, इसलिए वो information कोडेड फॉर्म में, एनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्क द पार्ट विद द एरर. ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स सम डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज डी. द प्रॉब्लम लाइज इन द प्रपोजिशन एंड इट शुड बी ऑफ. हालांकि अगर पंक्चुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. यहाँ पर कॉमा लगना चाहिए एंड इवेंचुअली और एक कॉमा यहाँ पर होना चाहिए. सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट. सो अब देखना होगा कि आयोग किसको ठीक करता है, वो पंक्चुएशन वाले मार्क को ग्रामेटिकल एरर में कन्वर्ट करता है या फिर ये प्रपोजिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. दीज बॉक्सेस आर वेरी हैवी, दे आर फुल ऑफ बुक्स. So the correct proposition is of and the correct answer is B. Next question. What is the rhyming scheme of Petrarchan sonnet? Petrarchan sonnet is A B B A A B B A C D E C D E. So the correct answer is first. It is in the form of an octave and a sestet. Thomas Wyatt brought it into English literature and it was primarily written by Petrarch, Italian poet Petrarch. It is a sonnet form of 14 lines. The important theme is love. So Petrarch wrote the sonnets for his beloved Laura. This Italian form was brought by Thomas Wyatt to England. और उसके बाद में बहुत successfully इसको use किया गया. So the correct answer is A. Next question. It was Meera who suggested that you be at the entrance to welcome every delegate on their arrival. Correct answer should be C. First part की बात करते हैं. So it was Meera who. Who is for Meera. So who और that दोनों ही चल जाएंगे. It was Meera that suggested. Suggest के बाद में क्या यूज होता है? Subjunctive. Subjunctive क्या होते हैं? Verb be itself subjunctive verb और any base form जो कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ as it is यूज होती है, उसका नंबर चेंज नहीं होता, तो वो सब सब्जेक्टिव होते हैं. तो यहाँ पे यू बी इज फॉर शुड बी, सब जगह ये चल जाएगा. तो बी इज ए सब्जेक्टिव, ये सजेस्ट के बाद में यूज होती है. ये भी पार्ट ठीक है. वेलकम ईच डेलीगेट. अब ईच एंड एवरी में बात, ईच किसके लिए यूज होता है? एवरी वन ऑफ टू और मोर पीपल रिगार्डेड एंड आइडेंटिफाइड सेपरेटली. अगर दो या दो से ज़्यादा लोग हैं और उनको अलग अलग हम यूज़ करना चाह रहे हैं, अलग अलग रेफर करना चाह रहे हैं, तब तो लगेगा ईच. एवरी कब लगेगा? व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज रिफर्ड, इट इज ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन टू रिफर टू ऑल इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ सेट विदाउट एनी एक्सेप्शन. एवरी कब लगेगा? जब हम एक सिंगल, पहली बात तो ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है. सो एवरी डेलीगेट इज सिंगुलर, एवरी इज सिंगुलर, ये कंडीशन पूरी होती है. दूसरी बात ये है, ये इट रिफर्स टू इंडिविजुअल, ऑल इंडिविजुअल. यहाँ पे क्या है? टू वेलकम एवरी डेलीगेट, यानी पूरा जो सेट है डेलीगेट का, पूरा जो ग्रुप है डेलीगेट का, उस ग्रुप को, डेलीगेट अपने आप में एक ग्रुप होता है, उस डेलीगेट के एक एक मेंबर के लिए रेफर करने के लिए एवरी का यूज होगा, ना कि ईच का. एक आपके माइंड में भी आ सकता है कि देयर इज अ रॉन्ग आंसर, इट शुड बी हिज, लेकिन ये ऐसा नहीं है. अब ईच के लिए, एवरी के लिए, इस तरह के जो होते हैं
प्रोनाउंस, उनके लिए देयर पजेसिव प्रोनाउन यूज हो जाता है, क्योंकि अगर हिज यूज करोगे तो वहां पर एक जेंडर स्पेसिफिक होने का रहता है। सो एवरी के लिए और ईच के लिए अगर पजेसिव यूज करना हो तो वो देयर आजकल यूज किया जाता है, प्रेफर किया जाता है, ताकि एक जेंडर स्पेसिफिक ना हो। अगर हिज यूज करोगे तो वो जेंडर स्पेसिफिक हो सकता है, हर यूज करोगे जेंडर स्पेसिफिक हो सकता है, लेकिन डेलीगेट में ये कोई मेंशन नहीं है दैट इट कंप्राइजेज मेल और फीमेल। सो देयर इज ओके। ईच एंड एवरी में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है। सो आंसर शुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन्स ट्वीट टू अ merry note while greasy John doth keel the pot, and then the lines are from William Shakespeare, Love's Labour's Lost, and it is a song. The title of the song is Winter. So the correct answer is D, William Shakespeare. Next question, which of the following poems is not written by John Galsworthy? Devon to Me is a poem. Russia America is a patriotic poem. When he went on a tour of Russia, तो ये रशिया और अमेरिका patriotic poem है. Past is also by John Galsworthy. Devon to Me is also by Galsworthy. Admonition to a Traveler, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है. So the correct answer is D. Next question, Coxswain is a character in Justice. तो बहुत easy question है, सब लोगों ने पढ़ा हुआ होगा. Next question, a story in verse or prose with a double meaning is popularly known as allegory. Correct answer is allegory. Allegory has two meanings, the surface and the implied one. हमेशा allegory में एक hidden story साथ साथ चलती रहती है और एक सरफेस स्टोरी होती है. जैसे जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फार्म, तो एक तो स्टोरी वो जो सरफेस स्टोरी है पिग्स की, एनिमल्स की. दूसरी स्टोरी, he tells the story or he satirizes the so-called incidents that were happening during his time, the World War II. जो एंटी फासिस्ट स्टोरी, उसको वो एलिगोरिकली यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है. तो दो स्टोरी, सरफेस एंड द इम्प्लाइड, वो एलिगरी में होती हैं. सटायर इज ए सटायर, द मेन स्टोरी इज यूज्ड टू सैटराइज टू रिफॉर्म द पीपल. स्टोरी थोड़ी सी ह्यूमरस वे में प्रेजेंट की जाती है ताकि लोगों की, किसी इंस्टीट्यूशन की या किसी पर्सन की कुछ फॉलीज को रिडिक्यूल किया जाए, सो दैट दे मे गेट रिफॉर्म. आयरनी इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ सटायर. सो सटायर इज पंशेंट, ये थोड़ा सा हार्श होता है, आयरनी थोड़ी सॉफ्ट होती है. आयरनी व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अपीयरेंस एंड द रियलिटी. तो आयरनी अलग तरह की स्टोरी होती है. फेबल इज ए स्टोरी विच हैज कैरेक्टर्स, एनिमल्स एज ए कैरेक्टर, लेकिन उसका एक मॉरल पर्पज होता है. लेकिन डबल मीनिंग एलिगरी का ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन दिस लाइन्स, फॉर फियर ऑफ विच हेयर दिस दाउ एज अनबेड, एरा यू वर बोर्न was beauty's summer dead. The lines are from William Shakespeare. The correct answer is C. And here it is from sonnet number 104. And these are concluding lines, concluding couplet. As you know that Shakespeare's sonnet are in 3 quatrains and a couplet. तो ये couplet का part है, couplet ही है in fact. Correct answer is C. Next question, in which poem of Wordsworth does the line our birth is but a sleep and a forgetting occur? Everyone is aware of this line and the poem. It is Immortality Ode. Ode on an intimation of immortality from the recollections of early childhood. ये पूरा टाइटल है उसका. फर्स्ट लाइन जो पैराडॉक्स है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो इमॉर्टलिटी ओड हर किसी ने पढ़ी होगी, यही आपका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, in which category does Two Gentlemen of Verona come? It comes in early comedies as it was published in 1590. लगभग 1590 का अराउंड ये पब्लिश हुई थी, तो अर्ली कॉमेडीज में ही ये आती है. It was first published in 1623 in first folio. पहली बार फोलियो में ही पब्लिश हुई थी. सोर्स इस प्ले का है फेलिक्स एंड फेलिसमैन, द स्टोरी ऑफ फेलिक्स एंड फेलिसमैना इन डायना ऑफ जॉर्गे डी मोंटेमेगर. ये सोर्स है और इसको फर्स्ट रोमांटिक कॉमेडी भी कहते हैं, फर्स्ट रोमांटिक कॉमेडी. आंसर इज ए. और ये अर्ली एक्सपेरिमेंटल प्ले भी कहते हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन ट्रांसफॉर्म. क्वेश्चन नंबर 1 to 23. चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो. जस्ट लाइक द एप्पल वॉज टू sour to eat. Here we have to remove
टू आपको पता ही है, अब टू रिमूव करते हैं तो सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट क्लॉज कैन बी सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट और कुड नॉट, जो भी टेंस के अकॉर्डिंग आए। तो द एप्पल वॉज वेरी सॉर, इसमें तो क्लॉज ही नहीं बन रही। द एप्पल वॉज एक्सट्रीमली सॉर टू ईट, यहाँ पर भी क्लॉज नहीं बनती। द एप्पल वॉज सो सॉर दैट इट कैन नॉट बी ईटन, ये हो सकता है लेकिन यहाँ पर कैन नॉट भी है और क्वेश्चन में है वॉज, यानी कि पास्ट में लेके जाना है। सो द आंसर इज डी, द एप्पल वॉज सो सॉर दैट इट कुड नॉट बी ईटन। ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सो प्लस एडजेक्टिव एंड दैट क्लॉज, दैट इज सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट और कुड नॉट, जो भी टेंस के अकॉर्डिंग हो। तो ये दोनों तो बिल्कुल ही खत्म है सेंटेंसेस। ये हो सकता था लेकिन यहाँ पर कैन नॉट नहीं चलेगा। वॉज पास्ट में है, कुड नॉट भी पास्ट में है और सेंटेंस भी हमारा पास्ट में ही है, तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, ये पैसिव में कन्वर्ट करना। गवर्नर वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यहाँ पे ये देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट है प्रेसिडेंट, वर्ब है अपॉइंटेड, ऑब्जेक्ट है हिम। सो हिम से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सो हिम से सब्जेक्ट बनाएंगे। ही वॉज अपॉइंटेड, पहली बात तो ही वाले चूज कर लीजिए, बाकी जो है वो गवर्नर खत्म है। ही वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ पे गवर्नर का मेंशन नहीं है, ये भी खत्म हुआ। He was appointed governor by the president. This is the correct answer. He from him, was from past form and appointed past participle. Governor by the president वो as it is रहेगा। Next question, who would not love his country? Assertive. ये rhetorical question है। This is called rhetorical question. Rhetorical question का आंसर उसी में implied होता है, या तो yes या फिर no। अब assertive में बनाना है तो इसमें से आप देख लीजिए, एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, इसी को अगर इंटेरोगेटिव में बनाओगे तो आपका आंसर यही आएगा, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, यू हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मीनिंग आपका वही रहे, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, ये नॉर्मल ऑब्लिगेटरी सेंटेंस हो गया, इसका ये नहीं होगा। हार्डली एनीवन वुड लव हिज कंट्री, सो ये तो सेंस ही चेंज कर दिया इसमें। सम पीपल मे नॉट लव हिज कंट्री, ये भी इस सेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू, इसको एक्टिव में चेंज करना है। एक्टिव में करना है तो आपको पता है जो क्वेश्चन वर्ड वहीं का वहीं रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वहीं की वहीं रहेगी, फिर यह है दे बी ब्लेम्ड बाय यू, सब्जेक्ट बन गया यू। अब देख लीजिए व्हाई शुड किस में फॉलो हो रहा है, फर्स्ट वाले में ही हो रहा है। व्हाई शुड और फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया। व्हाई शुड यू ब्लेम देम, व्हाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू, शुड के बाद में बी आता है, अगर पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो व्हाई शुड यू ब्लेम देम का करेक्ट पैसिव होगा व्हाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट, ब्लेम, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट यू नॉट ब्लेम देम, ये जैसे डू नॉट ब्लेम देम का आंसर हो जाएगा। वाई यू शुड नॉट ब्लेम देम, ये इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर ही नहीं बनी क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद में सब्जेक्ट आ गया, ये नहीं हुई, तो ये इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर ही रॉन्ग हो गई। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक बार्थविक इज अ कैरेक्टर इन सिल्वर बॉक्स। जैक बार्थविक इज द सन ऑफ जॉन बार्थविक। जॉन बार्थविक कौन है, एमपी, लिबरल पार्टी का एमपी, उसका बेटा है जॉन बार्थविक। एंड देन ही कम्स होम, जो फर्स्ट एक्ट में जो सीन स्टार्ट होता है, सो ही कम्स होम ड्रंक, यहीं से ही जो प्ले की थीम है वो स्टार्ट होती है। ही कम्स ड्रंक एंड कैरिंग अ लेडीज हैंडबैग, उस हैंडबैग की ही चोरी के ऊपर ये सिल्वर बॉक्स लगा हुआ है। जो सिल्वर बॉक्स है वो ये हैंडबैग ही है, बाकी प्लॉट इसी के ऊपर बनता है, यही चोरी हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, कॉम्प्रिहेंसिबल। सो कॉम्प्रिहेंसिबल में तो ई होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिबल। कंटेम्प्टिबल इज अ करेक्ट स्पेलिंग। कंटेम्प्टिबल मीन्स दैट डिजर्व्स कंटेम्प्ट, हेट, इट इज एन एडजेक्टिव। कॉम्प्रिहेंसिबल मीन्स क्या होता है, एबिलिटी टू बी या एबल टू बी अंडरस्टूड, लेकिन HEN होता है, HAN नहीं होता। कार्पोरियल, कार्पोरियल की स्पेलिंग में CORPOREAL होता है। एक तो कॉर्पोरल होता है, एक
कॉर्पोरियल नॉट कार्पोरियल, तो ए इसमें गलत है। कॉर्पोरियल मीन्स क्या होता है? रिलेटिंग टू अ पर्सनल्स बॉडी। करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 लाइन iambic pentameter stanza rhyming AB AB B C C is called rhyme royal. Rhyme royal was first used by Chaucer. Chaucerian stanza भी कहते हैं इसको। और rhyme royal रॉयल क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट वॉज फर्स्ट यूज बाय जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, नॉट ऑफ इंग्लैंड। जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड ऑफ 14th सेंचुरी, 17th सेंचुरी वाले नहीं, जो कि एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद में आए थे। ये जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ही यूज्ड दिस स्टैंजा फॉर्म इन किंग स्क्वायर, एंड सिंस अ किंग यूज्ड दिस स्टैंजा फॉर्म, सो इट वॉज रॉयली यूज्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड राइम रॉयल या फिर चौसेरियन स्टैंजा। इसको अगर आप देखोगे तो नॉर्मली इट कैन बी इन 2 वेज। फर्स्ट है आपका एक टेरसेट प्लस 2 कपलेट्स, जैसे कि आप देखोगे ए बी ए एंड बी बी सी सी, एक टेरसेट 2 कपलेट्स। दूसरा तरीका है इसको यूज करने का, अ क्वार्ट्रेन एंड अ टेरसेट, जैसे कि ए बी बी सी सी। तो एक टेरसेट 3 लाइन की, एक क्वार्ट्रेन 4 लाइन्स की। किसी भी तरीके से पोइट यूज कर सकता है इसको, हालांकि राइमिंग स्कीम इज द सेम, ए बी बी सी सी। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? ऑफ एजुकेशन इज ए प्रोज ट्रैक्ट, ये लिखा था 1644 में। एरोपेजिटिका, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लिखा था, ये भी 1644 में लिखा था, ये भी प्रोज ट्रैक्ट है। ऑन शेक्सपियर इज ए पोम, ये 1630 या फिर 31 में लिखी गई थी। जो स्टैंडर्ड बुक्स में है वो 31 है, लेकिन कहा जाता है कि ये 30 में लिखी हुई थी और पब्लिश हुई थी 1632 में। सेकेंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर, ये भी है, ये भी है। आल्मा एंड द प्रोग्रेस ऑफ माइंड, ये है मैथ्यू प्रायर की ये लॉन्ग पोएम है, लॉन्गेस्ट हिज लॉन्गेस्ट पोएम। ये पब्लिश हुई थी 1718 में इन द कलेक्शन पोएम्स ऑन सेवरल ओकेजन, और इसको फिलोसफिकल कॉमेडी इन वर्स भी कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्स ट्रेजेडी। इट वॉज हिज ओनली प्ले। वर्ड्सवर्थ ने एक ही प्ले लिखा था, वो भी, और ये कब लिखा था? व्हेन ही वॉज इन रेस डाउन। गॉडविन की फिलोसफी पर पे बेस्ड है ये। सेटिंग ऑफ द प्ले इज हेनरी थर्ड, द रेन ऑफ हेनरी थर्ड। अर्ली कंपोजिशंस में आता है ये। वर्ड्सवर्थ ने ये तब लिखा था जब फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो भूत उसके सर से उतरा था, एंड देन ही वाज डिसइल्यूशनड, एंड देन जो इंग्लैंड ने फ्रांस के ऊपर लड़ाई शुरू कर दी थी, तो वो जो आइडियल्स थे वो आइडियल्स रियलाइज नहीं हुए। वही फ्रस्ट्रेशन, ग्लूम इस प्ले का रीजन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन, अभी बताया था कि ये 1632 में पब्लिश हुआ था इन सेकेंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स। कई जगह लिखा हुआ होता है 1630 में ये रिटन थी, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशंस की, उसमें आप देखोगे सो इट बिलोंग्स टू 1631, बट इट वाज रिटन ओनली। यहाँ पे है क्वेश्चन पब्लिश्ड, एंड इट वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और यही एक जो फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम भी है। मिल्टन की सबसे पहले पब्लिश होने वाली पोएम जो है वो यही है, ऑन शेक्सपियर। और सेकंड फोलियो में किस तरीके से पब्लिश हुई थी, उनको कहते हैं एनकोमियम। एनकोमियम्स कौन सी होती हैं? पोएम्स ऑन रिटन इन द प्रेज ऑफ समवन, जैसे कि यूलोजीज होती हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ एनकोमियम, क्योंकि ऑन शेक्सपियर की प्रेज के लिए लिखी गई थी, इसलिए उस सेकंड फोलियो में इसको इंक्लूड कर लिया गया था। जैसा फर्स्ट फोलियो में एक और एनकोमियम थी उसकी, बेन जॉनसन की, टू माई बिलवेड ऑथर विलियम शेक्सपियर, उसको भी एनकोमियम कहते हैं, और ये ऑन शेक्सपियर भी एनकोमियम की कैटेगरी में आती है। तो पब्लिश ये 1632 में हुई थी। इट वॉज रिटन इन 1631, हालांकि कई जगह 1630 भी हो सकता है। और जब सेकेंड फोलियो में पब्लिश हुई थी, सो इट वॉज पब्लिश्ड एनोनिमसली, मिल्टन का नाम उस पर नहीं था, लेकिन मिल्टन की सबसे पहले पब्लिश होने वाली पोएम यही थी। बाकी उसके बाद में 1645 में उसका फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर इन द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कौन से पार्ट में हो सकता है एरर? नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी।
द एरर लाइज इन दिस सी पार्ट। आपको पता है कि नीदर नॉर वर्ब जो लगती है वो किसके अकॉर्डिंग लगती है, नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो भी नाउन प्रोनाउन नॉर के बाद आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, नीदर वाले के अकॉर्डिंग नहीं लगती। अब नॉर के बाद में कौन आया, माई ब्रदर इन लॉ। माई ब्रदर इन लॉ इज ए सिंगुलर नाउन। सिंगुलर के साथ वर्ब जो लगनी चाहिए वो क्या लगनी चाहिए, वॉज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इनकरेक्ट, वॉज एबल टू हेल्प मी, ऐसा होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस फ्रॉम ग्रोइंग। प्रिवेंट के बाद में हमेशा क्या आता है, फ्रॉम। प्रिवेंट्स फ्रॉम। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेज विच इज नॉट करेक्टली पंक्चुएटेड। फर्स्ट को देखते हैं, राम कॉमा द सन ऑफ दशरथ किल रावण। सन ऑफ दशरथ इज अपोजिशन टू राम, और अपोजिशन हमेशा क्या होता है, टू कॉमास के बीच में ही होता है, ये करेक्ट है। मैन ही सैड इज अ पॉलिटिकल एनिमल। ये एग्जाम्पल किसका है, स्प्लिट कोटेशन का। स्प्लिट कोटेशन में जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप किससे सेपरेट करते हो, कॉमा से। कॉमा यहाँ पर आना चाहिए तभी आप उसको सेपरेट करोगे। कॉमा लगा करके इसका मतलब क्या है कि यही पार्ट आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। मैन, फिर ये एट्रीब्यूटिव टैग, और फिर ये कंप्लीट कोटेशन चल रही है। और दूसरी बात है यहाँ पर भी जो कोटेशन है वो क्लोज होनी चाहिए। कोटेशन जब भी स्टार्ट होगी वो क्लोज ज़रूर होगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो क्लोज ना हो। सो इसमें दो जगह पंक्चुएशन मार्क्स होने चाहिए। एक तो स्प्लिट कोटेशन है इसलिए यहाँ पर कॉमा लगना चाहिए, मैन कॉमा फिर ही सैड इज अ पॉलिटिकल एनिमल, और इसको क्लोज भी होना चाहिए। तो ये सही आंसर आपका यही है। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड हेल्प हिम, ये तो नॉर्मल है, फुल स्टॉप ही आएगा, ठीक है ये। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन सेमीकोलन इवन हिज एनिमीज से सो। ये दो पैरेलल क्लॉजेज हैं। दो पैरेलल क्लॉजेज आप सेमीकोलन से जोड़ सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ एंड। एंड का सब्स्टिट्यूट है ये। जब आपको दो पैरेलल, दो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज जोड़नी हो, एंड का यूज ना करना हो, तो सेमीकोलन आपके सामने एक सॉल्यूशन होता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट मीन्स इट इज नॉट करेक्टली पंक्चुएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी कनेक्टेड नैरेटिव। यही गलत है। ऑटोबायोग्राफी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। इट इज अबाउट द क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स ऑफ सम पर्सन, और वो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती हैं, बिल्कुल होंगी, वो नैरेटिव कनेक्टेड होगी। लेकिन ये ऑप्शन में कह रहा है कि इट कैन नेवर बी। सारी इवेंट्स कनेक्टेड होंगी, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंटेड नैरेटिव होती है तो वो कनेक्ट जरूर होगी। तो ये आंसर ऑटोबायोग्राफी के लिए करेक्ट नहीं है। दूसरा देखते हैं, ऑटोबायोग्राफी इज ए स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ एज रिटन बाय दैट पर्सन। बिल्कुल ठीक है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही क्या है, द लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय द सेम पर्सन। मेमोइर्स डील विद एट लीस्ट in parts with public events and noted personages other than the author. An autobiography is a record of person's life. ये तो दूसरा ऑप्शन में ही आ गया। ऑटोबायोग्राफी खुद से ही लिखी जाती है। मेमोइर्स जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल भी हो सकती है, और इट कैन डील विद द लाइफ हिस्ट्रीज और द एनेक्डोट्स और द पासिंग इंसिडेंट्स अबाउट द सम अदर पीपल एज वेल। मेमोइर्स मतलब क्या है कि आप खुद लिख रहे हो, अपने बारे में लिख रहे हो, आप जहाँ जहाँ पे गए, जिन जिन लोगों से मिले, उनके बारे में भी लिख रहे हो। तो वो पब्लिक इवेंट्स के बारे में भी हो सकती हैं, लोगों के बारे में भी हो सकती हैं, और वो लोग ऑथर के अलग भी हो सकते हैं। लेकिन ऑटोबायोग्राफी में सारी इवेंट्स जो हैं वो पब्लिकली, सारी इवेंट्स पर्सन के बारे में ही होती हैं। फोर्थ ऑप्शन, सिमुलेटेड। सिमुलेटेड मतलब क्या है, प्रिटेंडेड। प्रिटेंडेड ऑटोबायोग्राफी इज अ डिवाइस ऑफन यूज्ड इन द नॉवल। जो नॉवल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में यूज़ की जाती हैं, लिखी जाती हैं, वो सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी, वो डिवाइस उसमें यूज़ होती है। कई सारी नॉवेल्स आपने देखी होंगी, जैसे डेविड कॉपरफील्ड है, तो वो फर्स्ट पर्सन नरेशन में है। आपको ऐसा लग रहा है कि डेविड कॉपरफील्ड की ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ रहे हो, तो वो उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी। सिमुलेटेड मीन्स प्रिटेंडेड। ये भी ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ए, जो कि ऑटोबायोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठती।
Next question, which of the following works of John Galsworthy puts forward John Galsworthy's ideas on drama? Jocelyn is a novel. इस नॉवल में तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा. Island Pharisees, Jocelyn is a first published novel under his published novel. Island Pharisees is the first novel in his own name. Jocelyn was written in under the name of John St. John. Island Pharisees written in his own name. Galsworthy इसी को ही first successful novel भी कहता है, according to Galsworthy himself. Inns of Tranquility is a collection of essays and short stories. Some short stories are also there. इन्हीं essays में वो ड्रामा के बारे में अपने आइडियाज को रखता है. England to a Free Man is a poem. ये पोएम है गोल्सवर्दी की. It is a poem by Galsworthy. So the correct answer is C. The Inn of Tranquility, Studies and Essays. The complete title is Inn of Tranquility, Studies and Essays. इसी में ही अपने ड्रामाज के बारे में वो बात कहता है. Next question, choose the one word from the options which describes the phrase most accurately. Incapable of being redeemed from evil. The correct answer is incorrigible. Impregnable का मतलब क्या होता है? Unable to be captured और broken into. जिसको कि कैप्चर ना किया जाए, जिसको कि broken, जिसको कि तोड़ा ना जाए और जिसको कि defeat ना किया जाए. Unable to be defeated. तो ये तो आंसर नहीं हुआ. इनइफेसिबल क्या होता है? जिसके कि इम्प्रिंट्स रिमूव ना किए जाएं. द इम्प्रिंट्स ऑफ विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड, कैन नॉट बी रिमूव. इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो इंडेलिबल होगा. इंडेलिबल भी मीन्स, इंडेलिबल का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलरली ऑफ इंक और पेन. पेन से लिखा हुआ या इंक में लिखा हुआ कुछ भी जो कि रिमूव ना किया जाए वो इंडेलिबल. और इनइफेसिबल दोनों सिनोनिम है. इनकॉरिजिबल क्या है? ह्यूमन एग्जिस्टेंस और ह्यूमन बिहेवियर के लिए आता है. ह्यूमन बिहेवियर और एन एरर विच कैन नॉट बी करेक्टेड. ह्यूमन बिहेवियर और एरर, जैसे यहाँ पे इविल, विच कैन नॉट बी करेक्टेड. करेक्ट आंसर आपका हुआ इनकॉरिजिबल. ये सब एडजेक्टिव हैं. ना क्वेश्चन नंबर 36 to 42 दे आर फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. फिलअप्स करने हैं ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. इजी शुरू करते हैं. बिल्डिंग्स डू नॉट मेक यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी आपको पता है कि ये जब कॉन्सोनेंट साउंड होती है फर्स्ट लेटर की तो वो क्या होती है? ए. बिल्डिंग्स डू नॉट मेक अ यूनिवर्सिटी. हालांकि यू है, यू इज ए वॉवल, बट दिस वॉवल मेक्स अ साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए. करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द टीचर्स एंड टीचर्स के साथ क्या होता है? प्यूपिल्स. एंड देयर परस्यूट ऑफ नॉलेज मेक. अब आपको देखना होगा कि ये प्लूरल सब्जेक्ट जो बना हमारा प्लूरल. इट इज़ द टीचर्स, प्यूपिल्स एंड देयर परस्यूट ऑफ नॉलेज. ये तीनों मिलकर के बनाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट. तो विच मेक, प्लूरल वर्ब मेक. द सोल ऑफ ए यूनिवर्सिटी. द यूनिवर्सिटी इज सेंचुरी ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइफ. यूनिवर्सिटी में सिर्फ इंटेलेक्चुअल लाइफ हो सकती है, इंटेलेक्चुअल बात हो सकती है. द हेल्दी रूट्स ऑफ नेशनल लाइफ आर टू बी फाउंड इन द पीपल. यहाँ पे ध्यान दीजिए, द सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप, यानी कि अगला सेंटेंस जो लेना है हमें वो सब्जेक्ट से लेना है. अगला सेंटेंस देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं. दे, यू, वी, हु. यू तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वी बिल्कुल नहीं हो सकता. हमारे और आपके बारे में बात नहीं चल रही है. थर्ड पर्सन नरेशन है, थर्ड पर्सन में बात चल रही है, तो या तो दे होगा या फिर हु होगा. हु हम लगाएंगे जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे. लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन तब होता जब यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ होता, यानी कि सेंटेंस वो कंप्लीट हो चुका है. तो करेक्ट आंसर इज दे. दे आर द वेल स्प्रिंग्स ऑफ नेशनल अवेकनिंग. दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रिवोल्यूशनरी. अब रिवोल्यूशनरी क्या होती हैं? मूवमेंट्स. सारी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स यूनिवर्सिटी से ही स्टार्ट होती हैं. When we give education, we start a ferment of debate and discussion of first principles. सिद्धांतों की बात होती है, प्रिंसिपल्स की बात होती है. 36 में बी ऑप्शन, 37 में सी ऑप्शन, 38 में ए ऑप्शन, 39 में डी ऑप्शन, 40 में दे फर्स्ट ऑप्शन, 41 में बी ऑप्शन, 42 में बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 43. Out of the given alternatives, fill in the gaps in the following sentences. Is connected narrative of the author's life with some stress on introspection. Author's life, author's own life, so it fits
ऑटोबायोग्राफी पहले भी डिस्कस किया था कि जो कनेक्टेड नैरेटिव होती है और पर्सन के बारे में ही अगर होती है तो वो क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी व्हेन अ पर्सन राइट्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अदर पर्सन। ट्रैवलॉग when author travels and during his travel he comes across many people, he has several experiences, so इन सारे experiences को एक fictional form में वो लिखता है, that is called travelogue. Travelogue is not only a fictional account, it is these days it is regarded as a fiction, as one of the genre of literature. Memoir भी autobiographical account of many things or many experiences, but it is not exactly autobiography. मेमोर्स में आपके सामने जो भी हो रहा है, यू कम अक्रॉस मैनी सिचुएशंस, यू कम अक्रॉस मैनी पीपल, मैनी इंसिडेंट्स, सो यू फ्रॉम योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू यू मे डिस्क्राइब, वो भी मेमोर में आ सकते हैं। जस्ट लाइक ए डायरी एंट्री। डायरी एंट्री में आप जो भी आपके सामने हो रहा है, आपकी लाइफ में हो रहा है, सब उसमें आप इंक्लूड कर देते हो। लेकिन ऑटोबायोग्राफी में स्पेसिफिकली यू टेल लाइफ history of your own. So the correct answer should be B. Next question 44. The error part in the following sentence. Error part किसमें होगा? The number of people applying were so large that the college had to stop issuing application forms. आपको पता होगा the number of plural noun. जब भी होगा ये plural noun ही होगा। of के बाद में जब भी होगा plural noun ही होगा, जैसे कि people. इसमें क्या है? सब्जेक्ट हमारा नंबर और नंबर क्या है? सिंगुलर। यहाँ पे अगर देखते हैं तो सिंगुलर नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे इट शुड बी वॉज। सो द करेक्ट आंसर इज बी। एरर लाइज इन दिस बी पार्ट। एक होता है अ नंबर ऑफ पीपल, जस्ट लाइक अ नंबर ऑफ पीपल मीन्स सिंपली मीन्स many people. तो a number is many people, a number of people is many people is plural. अगर many people होता तो यहाँ पे वर्ड ठीक, लेकिन ये है the number is singular entity. ये संख्या, लोगों की संख्या तो सिंगुलर हुई, इसलिए यहाँ पे was होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44. Choose the one word from options to describe from the phrases most accurately. To banish, up to banish from one's country. To banish is a verb. हालांकि सारी verbs हैं, लेकिन इसमें expatriate is also a noun. Expatriate ही आपका आंसर है यहाँ पे। Expatriate मतलब होता है to send somebody to some country, foreign country. और expatriate as a noun क्या होता है? A person who lives outside the country, वो भी expatriate हुआ। और banish का मतलब भी होता है to send somebody outside the country. Particularly banish का मतलब होता है punishment में। Anyway, यही इसका closest meaning भी है। Repatriate का मतलब क्या होता है? ये opposite है। Expatriate का उल्टा repatriate, मतलब to call back somebody who is in other country. Emigrate और immigrate ये दोनों भी confusing terms हैं। Emigrate का मतलब होता है to leave one's country, to settle abroad. और इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? टू कम टू अदर कंट्री, टू सेटल। तो एमिग्रेट अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी में सेटल होना, इमिग्रेट अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में आना। एक का मतलब आना, एक का मतलब जाना। यही फर्क है, दोनों में ही परमानेंटली सेटल होने के लिए ही पर्सन जाता है। लेकिन यहाँ पर भेजना है, आना जाना खुद का नहीं है, यहाँ पर भेजना है। When somebody else sends you, तो वहाँ पर एज ए वर्ब इसको अगर देखोगे तो ये expatriate ही इसका मीनिंग आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। Which of the following plays by Shakespeare is not classified as Roman play? एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर, दोनों रोमन प्ले हैं। कोरियोलानस भी रोमन प्ले है। हैमलेट इज नॉट अ रोमन प्ले। जूलियस सीजर का सीक्वल ही एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है। हैमलेट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। Which of the following is a pastoral elegy? अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। Elegy written in country churchyard is not specifically pastoral elegy. हालांकि सेटिंग जो है इसकी वो pastoral है। The poet mourns the dead farmers, villagers, those who have been buried in country churchyard. तो एक मॉर्निंग जो कन्वेंशन होती है pastoral elegy की,
वो तो इसमें अब कॉमन है। सेटिंग भी पेस्टोरल है, वो भी आपको मान सकते। इन मेमोरियम इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली पेस्टोरल एलिजी। हालांकि इसमें जो कन्वेंशनल टर्म्स हैं और कन्वेंशंस हैं पेस्टोरल एलिजी की, कन्वेंशंस क्या होती हैं वो सेरिमोनियल, मॉर्निंग और प्रेज ऑफ डेड और कंसोलेशन फॉर द लॉस, ये सब कन्वेंशंस हैं और टू सर्टेन एक्सटेंट दीज कन्वेंशंस हैव बीन फॉलोड इन मेमोरियम। तो ये भी पेस्टोरल एलिजी की कैटेगरी में आप कह सकते हो, हालांकि एग्जैक्टली ये दोनों पेस्टोरल एलिजीज नहीं है। लेसिडास परफेक्टली पेस्टोरल एलिजी है। ड्यूनो एलिजी आपका आंसर है एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन, क्योंकि ये एक पूरी तरीके से इंटेंसली रिलीजियस, नाम ही इसका एलिजी है, एलिजी जैसा इसमें कुछ है नहीं। और इसको पॉपुलराइज किसने किया था? रेनर मारिया रिल्के। और ये क्या है? ड्यूनो एलिजीज, ये कलेक्शन ऑफ 10 एलिजी। तो एलिजी, इट इज एन एलिजी बट नॉट इन ए कन्वेंशनल सेंस, जस्ट लाइक पेस्टोरल एलिजी। और बेसिकली इसमें क्या है? द पोएट इज डीलिंग विद his search, deals with his or her search for spiritual value in an alien world. तो it is not more a mourning than a search for spiritual truth. तो ये आपकी पेस्टोरल एलिजी में काउंट नहीं होती, इसलिए आपका आंसर यही होना चाहिए। हालांकि ये दो ऑप्शंस भी कंट्रोवर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ एग्जामिनिंग नहीं होता, एग्जामिनिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट्स रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट इज बायोग्राफी। व्हेन यू राइट अ बायोग्राफी और अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अदर पर्सन, सो यू हैव टू डिपेंड ऑन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट्स अबाउट द पर्सन। तो वो बायोग्राफी में ही होते हैं। ऑटोबायोग्राफी में तो कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, द पर्सन नोज क्वाइट वेल अबाउट हिज लाइफ, so he writes the well known information about himself. लेकिन जब कोई और किसी की बायोग्राफी लिखता है, so he has to depend on all available information और texts और facts और figures about the person. जहाँ से भी उस पर्सन के बारे में जो भी कुछ मिल जाए उसके बेस पर वो किसी की बायोग्राफी लिखता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं उस पर्सन के साथ। तो ये आपका आंसर हुआ बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी आपको बताया हुआ है, मेमोर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओड वो जब ग्लोरीफाई करते हैं किसी इवेंट को, किसी पर्सन को। एलिजी अभी पीछे बताई थी दैट इट इज अ पोएम ऑफ लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ सम पर्सन, सम इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस। द करेक्ट आंसर इज इट इज कन्वल्सेंस। आपने चार्ल्स लैम्ब का कन्वल्सेंट ऐसे पढ़ा होगा। कन्वल्सेंट क्या है? इट इज अबाउट हिज रिकवरी फ्रॉम इलनेस, वहीं से ही नाउन है कन्वल्सेंस। इट इज अ प्रोसेस इन विच यू रिकवर फ्रॉम सम इलनेस, सो दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वल्सेंट। पनेशिया इज अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, सारे मर्ज की एक दवा। प्यूट्रीफैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिके और रोटिंग, पर्टिकुलरली बॉडी। जब बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाए, रोट होना शुरू हो जाए, सड़ना शुरू हो जाए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्यूट्रीफैक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्पेलिंग इज डिफरेंशियल, DIFFERENTIAL. It is not CIAL, SIAL, or it does not have only single F. It has double F and TIAL. वही आपको ध्यान रखना है, एक तो डबल एफ और एक TIAL, बाकी सब आपको पता है। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सेंटेंस, ही गेव मी मच टू पेन, आई शैल गो जस्ट नाउ, ही ऑलवेज गेट्स सक्सेस सिंस ही हार्डली वर्क्स, आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू। द करेक्ट आंसर इज ओनली बी। इसी में ही दोनों ग्रामेटिकल और मीनिंग वाइज कंडीशंस फुलफिल होती हैं। आई शैल गो जस्ट नाउ ये एडवर्ब है और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करती है जो कि कर सकते। पहले सेंटेंस को देखते हैं, ही गेव मी मच टू पेन। मच टू का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसमें क्या होना चाहिए था? ही गेव मी मच पेन या ही गेव मी अ लॉट ऑफ पेन। ही ऑलवेज गेट्स सक्सेस सिंस ही हार्डली वर्क्स। हार्डली इज नॉट सुटेबल एडवर्ब हेयर, इट शुड बी हार्ड। सिंस ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पर वो भी बात, हार्ड इज ऑल्सो एडवर्ब। हार्डली इज एन एडवर्ब, हार्ड इज ऑल्सो एन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। यहाँ पर हार्ड की जरूरत है, हार्डली की जरूरत नहीं। हार्डली का मतलब क्या है? स्केर्सली। इफ ही वर्क्स स्केर्स, हाउ कम ही कैन गेट सक्सेस? ही गेट्स सक्सेस, सो ही मस्ट बी वर्किंग वेरी हार्ड। तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ।
शैल आई बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू। अब टू ग्लैड टू सी यू का मतलब आप इसको अगर ट्रांसफॉर्म करोगे तो आई शैल बी सो ग्लैड दैट आई कैन नॉट सी। वो किस तरह का खुश हुआ जो आपको देखना ही ना चाहे, इसलिए कॉन्ट्रडिक्टरी है। ये टू का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंस में, इसलिए ये भी आंसर ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। करेक्ट आंसर इज ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड शेक्सपियर अ जोहानस फैक्टोटम और a jack of all trades? It was Robert Greene. Robert Greene in his God's Worth of Wit. ये उसके एक राइटअप था, उसमें इसने शेक्सपियर को सेटराइज किया था। 3 चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो रॉबर्ट ग्रीन कॉल्स शेक्सपियर जोहानस फैक्टोटम। He felt jealous or he did not approve the popularity of Shakespeare. So he calls him जोहानस फैक्टोटम कि शेक्सपियर एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी है, सब कुछ है, सब कुछ कर लेगा वो। तो वो उसको नहीं फील हो रहा था कि दैट अ पर्सन, हाउ कम अ पर्सन कैन बी सो वर्सेटाइल, सो ही ट्राइज टू सेटराइज शेक्सपियर। सेकेंड थिंग, शेक्सपियर के ब्लैंक वर्ड्स के यूज़ में, द यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स इन द हैंड ऑफ शेक्सपियर, वो भी रॉबर्ट ग्रीन को डाइजेस्ट नहीं हुआ। और तीसरा क्या है कि ही कॉल्स हिम एन अपस्टार्ट क्रो। ये तो आपने सबने बड़े फेमसली पढ़ा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रिनेसा हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर इन 16th century. Renaissance movement started in 14th century. Late in 14th century it started. It developed in 15th century. 15th century because it was a barren age. No substantial literature was produced in 15th century. लेकिन by the arrival of 16th century में आप देखो यूनिवर्सिटी विट्स ने किस तरीके से बहुत सारी लिटरेरी जॉनरों को रिप्रोड्यूस किया, बोरो किया, यूज़ किया और एक नई उनको डायरेक्शन दी। मार्लो ने, शेक्सपियर ने, जॉन लिली ने, इन सब लोगों ने बहुत सारे लिटरेरी जॉनरों को रिवाइवल हुआ, क्लासिकल लर्निंग का रिवाइवल हुआ, क्लासिकल थीम्स को रिप्रोड्यूस किया गया। ये सारा काम हुआ 16th सेंचुरी में एंड इट लास्टेड टिल रिस्टोरेशन पीरियड। 14th सेंचुरी से लेकर के, लेट 14th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी यानी रिस्टोरेशन पीरियड तक रिनेसा पीरियड का मानते हैं हम ड्यूरेशन। और फुल ब्लूम जो था वो, ये फुल ब्लूम ये 16th सेंचुरी में ही था। तो आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नॉवलेट रिटन बाय जॉन गोल्सवर्दी? फ्रीलैंड्स इज अ फुल लेंथ नॉवल। जॉसलिन इज ऑल्सो फुल लेंथ नॉवल। हालांकि आयोग ने कई बार इसको कहा है कि ये नॉवलेट है, नॉवला है, लेकिन ये नॉवला कुछ नहीं है, ये फुल लेंथ नॉवल है। फुल लेंथ नॉवल अंडर जॉन सिन जॉन। फोर्साइट सागा तो सागा है, पूरी कंप्लीट सीरीज है, रोमान फ्लॉग, तो इसका आंसर होगा none of the above. Next question, find out the most suitable preposition from the given option. Malti is fed up with. Fed up with, complete correct answer is B. Fed up of भी होता है, लेकिन वो कहाँ होता है? Of state, some state, state of being. Just like he is fed up of being ignored. लेकिन यहाँ पे he is fed up with something. Fed up with something, just like weather. So correct answer is B. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द पार्ट विद एन एरर। दीज काइंड ऑफ अपैरल, पहले देख लीजिए, दीज काइंड का कोई कॉम्बिनेशन हुआ, दीज काइंड्स या फिर दिस काइंड। प्लूरल है तो दोनों जगह प्लूरल होगा, सिंगुलर है तो दोनों जगह सिंगुलर होगा। अगले सेंटेंसेस देख लीजिए, सीम्स, अब सीम्स क्या सिंगुलर, तो दिस काइंड विल बी करेक्ट एंड इट इज, सो इट सिंगुलर के लिए, तो आपका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्पेलिंग इज डिसर्नमेंट, DISCERNMENT। ये बना है डिसर्न से, एबिलिटी टू जज, ऑब्जर्व करना, जज करना, उसी से ये डिसर्न नाउन बना है। करेक्ट स्पेलिंग इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गोल्सवर्दी? स्वान सॉन्ग तो थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट ऑफ द मॉडर्न कॉमेडी, जो सीक्वल है फोर्साइट सागा का। द थॉर्न आपका आंसर है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ। सेंट्स प्रोग्रेस नॉवल है गोल्सवर्दी की। फ्लावरिंग वाइल्डरनेस ये सेकंड पार्ट है, सेकंड नॉवल, सेकंड पार्ट ऑफ एंड ऑफ द चैप्टर। एंड ऑफ द चैप्टर फोर्साइट क्रॉनिकल्स का लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट भी है। ये भी ट्रायलॉजी है, ये भी ट्रायलॉजी का पार्ट है, और फोर्साइट सागा भी ट्रायलॉजी है। तो आपका करेक्ट आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैप मी इन सॉफ्ट लीडियन एयर्स मैरिड टू इमॉर्टल वर्ड्स सच एज द मीटिंग सोल में पियर्स इन नोट्स विद मैनी वाइंडिंग बोट। द लाइन्स अपीयर्ड इन एल एलेग्रो।
इट इज़ अ पोएम ऑफ मर्थफुल पर्सन, हैप्पी मैन। इसकी सिस्टर पोएम है एल एलेग्रो, वो मेलनकली मैन के लिए, सैड पर्सन। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिरिक फॉर्म ऑफ पोएट्री इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू। लिरिक कंटेन्स 14 लाइन, यही आपका आंसर है। सोनेट हैज 14 लाइन्स, हालांकि सोनेट इज अ फॉर्म ऑफ लिरिक, सोनेट इज अ काइंड ऑफ लिरिक, बट ऑल लिरिक्स डू नॉट कंटेन 14 लाइन्स, दे हैव वेरिंग लेंथ्स, डिफरेंट लाइन लेंथ हो सकती है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। इट यूजुअली एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स ऑफ एंड थॉट्स ऑफ सिंगल स्पीकर। लिरिक क्योंकि शॉर्ट कंपोजिशन होती है, वो सिंगल स्पीकर की एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स उनको ही एक्सप्रेस करती है, ये ठीक है। द ग्रीक्स आइडेंटिफाइड द लिरिक एज अ सॉन्ग रेंडर्ड टू द अकम्पनीमेंट ऑफ लायर। लायर से ही ये लिरिक बना हुआ है, जो हम लिरिक्स कहते हैं ना जिनको, तो लिरिक्स क्या होते हैं? जो सॉन्ग जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। लिरिक पोएम में भी ब्रीफ एक्सप्रेशन ऑफ अ मूड, क्योंकि शॉर्ट कंपोजिशन है तो शॉर्ट कंपोजिशन में सिंगल फेल्ट मूड, सिंगल फेल्ट इमोशन इज एक्सप्रेस्ड। बाकी सब ठीक है, 14 लाइन्स वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? आपको ग्रामेटिकल स्टेटस मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एवरीबडी जॉइंस हैंड्स एंड डांसेस राउंड। राउंड is an adverb here. Any word that modifies a verb, round modifies this dances. Dance is verb, so the answer is adverb. Now, noun is the name of a person, place or thing. Adjective modifies noun. Verb tells the action. Next question, the term carpe diem means hail the day, seize the day, goodbye the bright day, or seize the day. It is seize the day, or it should be pluck the day. It is a Latin word, Latin phrase even. Latin phrase which means pluck the day or seize the day. और ये टर्म किसने यूज किया था? होरेस ने। होरेस यूज्ड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। पर्टिकुलरली मीनिंग क्या होता है? यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, फॉरगेटिंग अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर, वरिंग अबाउट द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी। अभी बात की थी बायोग्राफी के बारे में। इट इज द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैन्स लाइफ, किसी पर्टिकुलर मैन के बारे में हो सकती है, ठीक है ये। द नेम ऑफ बायोग्राफी नाउ कैनोट्स अ रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सनस लाइफ, यही इसका ये वर्जन है। तो किसी भी पर्सन के बारे में फुल अकाउंट उसकी लाइफ का हो सकता है, बिल्कुल सही है। इट इन्वॉल्व्स द अटेम्प्ट टू सेट फोर्थ कैरेक्टर, टेम्परामेंट एंड मिलियू एज वेल एज सब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस। सब्जेक्ट मतलब जिस पर्सन के बारे में बात कही जा रही है, जिसकी बायोग्राफी लिखी जा रही है, तो उसके बारे में जितने भी उसके लाइफ में कैरेक्टर्स हैं, उसका मूड, उसकी सोशल स्टेटस और उसकी एक्टिविटीज़, इसकी एक्सपीरियंसेस सब काउंट किए जा सकते हैं बायोग्राफी में, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट, बायोग्राफी इज अ लेटर डे जॉनर। बायोग्राफी इज नॉट अ लेटर डे जॉनर, ये इट वॉज मच अर्लियर। बायोग्राफी पर्टिकुलरली 17th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी। और अगर पहले की बात की जाए तो और पहले आप इसको कह सकते हैं प्लूटार्च लाइफ्स जो हैं, जिसके की जो रोमन प्लेज हैं शेक्सपियर के यहाँ से लिए गए हैं, तो प्लूटार्च लाइफ्स दे आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ बायोग्राफी ऑफ एम्परर्स। लेकिन एज ए जॉनरो इसको अगर आप कहोगे तो 17th सेंचुरी से ये स्टार्ट हुई थी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इजाक वॉल्टन, इजाक वॉल्टन्स लाइव्स ऑफ डन, रिचर्ड हुकर, हेनरी वॉर्टन, जॉर्ज हर्बर्ट। तो ऐसा नहीं है कि ये 20th सेंचुरी की जॉनरो हो, यही आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, मतलब आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, इट इज पायरोटेक्निक्स। Pyrotechnics is the art of making fireworks, और it is related to firework, और it is also about firework display। जो दिवाली पे या फिर दशहरा पे या फिर न्यू ईयर पे आपको फायरवर्क डिस्प्ले मिलता है, उसको क्या कहोगे? पायरोटेक्निक्स। न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, मेडल्स और बैंक नोट। सिकैट्रिक्स मतलब क्या होता है? स्कार ऑफ द हील्ड वुंड, स्कार ऑफ हील्ड वुंड, जो घाव के बाद में निशान रह जाता है उसको सिकैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द पार्ट विद एन एरर। वन मस्ट ग्रैब एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ यू। अब यहाँ पे देखिए, वन से स्टार्ट हुआ था, यू पे खत्म हो गया, यही आपका आंसर है, यही रॉन्ग पार्ट। क्या होना चाहिए? इफ वन
इफ वन वांट्स टू, वन से पजेसिव वंस बिल्कुल करेक्ट है। और नॉमिनेटिव, वन का नॉमिनेटिव भी क्या होगा, वन। आंसर इज सी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। मर्डर ऑफ ए ब्रदर इज a fratricide. Fratricide is a killing of brother. Homicide means killing of another person. Unlawful killing of one person by another person. A sort of murder. Infanticide is a killing of baby or infant by its own mother, or particularly killing of an infant by the family members within 1 year or after he is born. जैसे बेबी गर्ल्स को मार देते हैं लोग, तो आफ्टर शी इज बॉर्न द फैमिली मेंबर्स, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली और द मदर हरसेल्फ, दे किल दैट बेबी गर्ल. So it is a killing of an infant, whether baby girl or a baby boy. Sorrowcide is a killing of, when you kill your own sister, it is called soricide. Next question 67. The correct spelling is consonantal. CONSONANTAL. It derives from consonant, vowel wala consonant. Next question, choose the appropriate preposition from the options given below. We divided the property into several parts. Among तब होता है जब people, लेकिन it is divided into several parts. Something that is divided, so it is divided into parts. But when it is divided among the people or between the people, if there are more than two people, so among the people. If there are two people, between the people. But when it is divided into parts, so it is into. The correct answer is A. Next question, I have not seen him last month. Last month is a point of time. Point of time के लिए क्या आता है, since last month. Next question, your behavior does not admit to any excuses. Admit to means allow. When admit is with object, some object, so it should be admit of when there is no object. जब कोई object नहीं होगा तो admit of, object होगा तो admit to. Next question, find out the incorrect sentence. But one thing, however, has not changed. You should act like me. If you do not work hard, you cannot succeed. I'll wait here until you come back. Correct answer should be A. देखिए, but and however का कोई combination नहीं है. However अपने आप में वो कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस करता है. दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू शुड एक्ट लाइक मी, बिल्कुल ठीक है. लाइक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, बिल्कुल ठीक है. इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, बिल्कुल ठीक है. कंडीशनल सेंटेंस है ये, कंडीशनल, ये फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल का एग्जाम्पल है. दूसरे में आपका कैन कुछ भी हो सकता है. I'll wait here until you come. Until के बाद में या unless के बाद में जो क्लॉज रहेगी वो अफर्मेटिव में रहेगी, बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एपोलॉग. एपोलॉग इज ऑल्सो अ मॉरल फेबल, मॉरल स्टोरी विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स. और यही फेबल का भी मीनिंग हो. सो द फेबल इज सिमिलर टू और सिनोनिमस विद एपोलॉग. पैरेबल, प्रोवर्ब, एग्जाम्पशन, इन सबका मॉरल पर्पज होता है, लेकिन सब में बाकी की तरह, सब में फेबल और एप्लॉग की तरह एनिमल्स कैरेक्टर नहीं होते. पैरेबल अगर देखते हो तो ये सिंपल स्टोरी है विद सम स्पिरिचुअल लेसन. पैरेबल मॉरल लेसन, स्पिरिचुअल लेसन इसमें भी है, लेकिन ये एनिमल्स इसमें कैरेक्टर्स नहीं है. प्रोवर्ब तो कोई सेइंग में हैव अ मॉरल लेसन और इट इज मेयरली अ सेइंग. एग्जाम्पियम इज ऑल्सो मॉडल एग्जाम्पलरी स्टोरी with some morality plays जो होते हैं. तो morality plays are a kind of exampium. They are the story on the one hand, and then they tell the story and they tell a moral. They show a moral. They are the model of some moral. तो exampium is also with moral purpose. लेकिन बाकी में animals as characters नहीं होते. ये fable और epilogue में ही होते हैं. Next question, Shakespeare's play Love's Labour's Lost is a good example of Comedy of Manners. Comedy of Manners was published in 1598 in quarto form. It is about the fads and fashions of society. It directly fits the conventions of Comedy of Manners of 17th century. उस सेंस में कहा जा सकता है कि ये Comedy of Manners का प्रीडेसेसर के फॉर्म में ये है. इसको प्लेजेंट कंसीडर्ड कॉमेडी भी कहते हैं और इट इज अ कोर्टली.
Next question, who among the following writers is known for epigrammatic prose style? सबको पता है एपिग्रामेटिक स्टाइल किसका है, बेकन का। टॉमस ब्राउन थोड़ा मेडिटेटिव और ट्रीटाइज लाइक स्टाइल है। डॉक्टर जॉनसन सैटारिकल और रादर ही इज अ पोएट। एडिसन पीरियोडिकल एसेज के लिए सैटारिक वीन है इनकी भी, लेकिन एपिग्रामेटिक स्टाइल सिर्फ बेकन का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्पेलिंग इज फ्लफी, FLUFFY। नेक्स्ट क्वेश्चन, find out the most suitable preposition from the given options. I broke this glass by accident. By accident means, by accident is a phrase which means to do something or done something by chance or unintentionally. Next question, the line "thy soul was like a star and dwelt apart," London 1802. It was written by William Wordsworth in praise of Milton. He wants Milton to reincarnate because he finds the moral degradation in the present century. So he finds Milton to be that model who can regenerate morals in this society, the present society. The line "they also serve who only stand and wait" occurs in which of the following poems? It is most famous poem by Milton. It is On His Blindness. Next question, who refers to William Wordsworth as an ever-enduring man? It was his friend Astley Coleridge. Astley Coleridge wrote this line, the poem, to Mr. William Wordsworth or to Wordsworth, to William Wordsworth. He wrote this poem in response to the Prelude. When Prelude was written in 1805 and then it was discussed with Astley Coleridge. So Astley Coleridge was so mesmerized, so infatuated, so impressed by this poem that he dedicated this poem to William Wordsworth. Earlier this poem was Sibyl in Leaves. Sibyl in Leaves was the earlier title of this poem, which was later on changed in 1834 to William Wordsworth. So it is a kind of tribute to William Wordsworth by Coleridge. Correct answer is D. Next question, find out the most suitable preposition from the given options. It was very generous of you. That's a kind of you. It is very kind of you. So generous is also similar. Correct answer is C. Next question, thou hadst a voice whose sound was like a sea, pure naked as heaven's majestic free. These lines are from London 1802 by Wordsworth about Milton. So the correct answer is C. Next question, the meaning of the word indignation. Indignation is annoyance. So it is anger with surprise. Indignation is an anger or annoyance that is provoked by what is perceived as unfair treatment. So this unfair treatment you don't expect. It comes as a surprise. So this is indignation. Diversion is to divert some way or to entertain. Entertainment or diverge. Disgust is a repulsion, feeling of repulsion. A strong dislike. Dignity is a state or quality of being worthy. Next question, what is grammatical status of underlined word? There was a great round of applause. It is noun. There was what? We require a noun phrase. There was means linking verb plus what we require complement. Complement किसकी फॉर्म में होता है? या तो वो नाउन होता है, नाउन फ्रेज, या कोई एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल। अब नाउन फ्रेज हम देखते हैं तो क्या है? A great round of applause is a complete noun phrase. और उसमें रूट वर्ड क्या है? A round of applause. Great is an adjective, A is an article, round is the root word, the head word, noun. This is the head word, which makes this noun phrase. Of applause is attributive word. A dramatic monologue is a type of poem that contains dramatic monologue. It is one imaginary speaker talking to an imaginary audience. This is the correct answer. It is not a single speaker talking to himself. ये क्या होता है? Soliloquy. Several speakers talking on one subject. ये सेमिनार टाइप का हुआ. Dramatic is bound to be in conversation. Something that is dramatic has a conversation. Means it requires two people. At least two people. One who speaks, one who listens. तो यहाँ पर one imaginary speaker talking to an imaginary audience. जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग के ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, लास्ट राइड टुगेदर, जस्ट लाइक. सो लास्ट राइड टुगेदर we have a lover that is an imaginary, and he seems to be talking to his beloved. His beloved is also an imaginary
audience. It is not a single dialogue. So the correct answer is C. Next question. Identify the correct form of verb or phrases out of the choice given choice. तो B की फॉर्म क्या होती है? is MR was verb होती है और been होती है. been with some combination. been किसके साथ होती है? verb have के साथ. have has plus being हो सकती है. is MR was verb. be there situation be different, यानी कि एक कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल किस किस तरीके से होता है? I were there. तो I were से तो होगा नहीं, या तो ये होगा were I there, सिचुएशन would be would be different. If I were there, if से तो स्टार्ट हुआ नहीं है, तभी भी would होता. फिर क्या होता है? If I had been there. अब if वाला सेंटेंस तो दिया नहीं है, तो इसका दूसरा रूप क्या है? Had I been there. Had I been there कौन सी उसमें आ जाएगा? थर्ड कंडीशन. थर्ड कंडीशनल में क्या होता है? Had पास्ट पार्टिसिपल और दूसरी क्लॉज में क्या होता है? would have. So the correct answer is had I been there, the situation would have been different. Third conditional answer is C. Next question. The boss wanted to know, indirect में करना है अभी है. अब wanted to know आपको पता है indirect में क्या करते हैं हम. अगर question word से start हो रही है क्लॉज तो उसको नॉर्मल स्ट्रक्चर जो कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसमें हम ले जाते हैं और क्वेश्चन वर्ड क्या बन जाता है हमारा? कनेक्ट. तो नो हाउ हमारा कनेक्टर है और फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की सिचुएशन. अभी देखिए दैट और क्वेश्चन वर्ड का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, नहीं हुआ. हाउ वुड आई हैव का अगेन ये हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, ये इन्वर्जन को फॉलो कर रहा है. इन्वर्जन इनडायरेक्ट में नहीं आएगा. हाउ हैड आई अगेन ये इन्वर्जन को फॉलो कर रहा है, ये भी इन्वर्जन में नहीं आएगा. इन्वर्जन क्या होती है? जब क्वेश्चन वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर ये हुआ तो ये इन्वर्जन है. और नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. तो अब जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम करते हैं तो जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो क्या बन जाता है? कनेक्टर. और बाकी क्लॉज किस में आ जाती है? नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ये कंडीशन आपकी इस ऑप्शन में ही फुलफिल हो रही है. ये कनेक्टर, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. कंसीडर द फोर ऑप्शंस कंप्राइजिंग कंप्लीट सेंटेंस. 15 माइल्स आर लॉन्ग वे टू वॉक. अब देखिए लॉन्ग वे इज सिंगुलर. 15 माइल्स अगर पूरी डिस्टेंस को अगर देखता है, जब डिस्टेंस को रिफर करता है तो वो क्या होता है? सिंगुलर. वर्ब इज प्लूरल. यही आपका करेक्ट आंसर इज बी और एरर इसी में ही है. यहाँ पे क्या होना चाहिए? इज. 15 माइल्स is a long journey. Next question. As a dramatist, John Galsworthy belongs to the realist tradition of Johnson Pinero. John Galsworthy और G.B. Shaw realist ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं. इनके प्रॉब्लम प्लेज होते हैं. प्रॉब्लम प्लेज में जो करंट सिचुएशन होती है, करंट इश्यूज जो होते हैं, रियलिस्ट इश्यूज जो होते हैं सोसाइटी के, उनको ही डील करते हैं. तो इसके सारे ड्रामाज में, सारे प्लेज में आपको क्या मिलेगा? एक करंट इश्यूज यानी रियलिस्ट ट्रेडिशन जो कि जॉन्स एंड पिनेरो को इन्होंने फॉलो किया था. रोमांटिक ट्रेडिशन को बिल्कुल नहीं. साइकोलॉजिकल जो D.H. लॉरेंस की है उसको बिल्कुल नहीं. D.H. लॉरेंस से तो इसका 36-38 का आंकड़ा था, इसलिए आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ अंडरलाइन वर्ड? वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट टू राउंड. इट इज ए इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव क्या होती है? वर्ब. सो द आंसर इज वर्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अबाउट closed drama? Closed drama is intended to be read rather than to be staged on the theatre. This is the correct answer. Closed drama is primarily written for reading purpose rather than staging. Next question. The prose Gothic novel denotes a medieval type of architectural work. It derives from architecture. But as far as prose is concerned, prose Gothic novel, so it is a type of prose fiction which has been set in the Middle Ages, often suffused with gloomy castles. This is the correct answer. Gothic novel derives its origin from architecture only, but it is not architectural work. It is a prose fictional work. So this B option is correct. Next question. Find out antonym of the word ample. Ample is sufficient, sufficient enough. ये दोनों synonym है. Scarcity, देखिए स्कैरिसिटी भी कम होता है और मीगर भी कम होता है. अब आपको ढूंढना है एम्पल की क्लास. जो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? एडजेक्टिव है.
अब आपका आंसर जो होगा वो एडजेक्टिव में ही होगा। इनफ इज एडजेक्टिव, सफिशिएंट इज एडजेक्टिव, बट दे आर सिनोनिम्स। स्कैरसिटी हैज द सेम मीनिंग, लैक मीन्स ऑपोजिट ऑफ एम्पल, बट इट इज नाउन। आपको चाहिए एडजेक्टिव। मीगर इज एन एडजेक्टिव। यही आपका आंसर है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ट्रांसफॉर्म्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वी हैड अ वेरी मैरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट। अब यहाँ पे कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड तो दिया नहीं है, तो आपके कहाँ से होते हैं, या तो हाउ से होता है या फिर वो व्हाट से ही होता है। सारे आंसर इसमें व्हाट से हैं, और व्हाट वाले जो आंसर होगा वो सेंटेंस, उसके बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये कंडीशन सब में फुलफिल हो रही है, लेकिन स्ट्रक्चर आपको देखनी है। व्हाट मैरी टाइम दे हैड, यहाँ पे वी है, यहाँ पे दे है, ये आंसर खत्म। व्हाट अ मैरी टाइम वी हैव, यहाँ पे ये पास्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आंसर भी खत्म। What a merry time we had of it last night. This is the correct answer. So these three options are not valid. Pronoun is different. Here verb is different. And here again pronoun and verb both are different. So these three options are not valid. Only this is. What a merry time we had of it. ये सारी conditions fulfill कर रहा है. Next question, in the first folio edition of Shakespeare's dramas, which play was omitted? It was Pericles. Pericles and Two noble of kinsmen. Two noble kinsmen. एक ये और एक Pericles. They were omitted from first folio. Next question, my views may be different from yours, but you should not indifferent to. Indifferent takes to as a preposition. Different takes from as a preposition. Correct answer should be B. Next question, pick out the correct preposition. We didn't get home till 2 AM. 2 बजे तक नहीं पहुंचे। 2 बजे के बाद में नहीं पहुंचे, 2 बजे तक नहीं पहुंचे, तो till. Next question, in the Forsyte saga, the Forsytes belong to a typical city life. इनके जो गांव के जो रिश्तेदार हैं या फिर जो कजिन्स हैं, उनको आप कहाँ देखते हो? ऑन फोरसाइट चेंज। ऑन फोरसाइट चेंज में, स्टोरीज में, और कुछ जो रिलेटिव्स हैं, डिस्टेंट रिलेटिव्स, वो एंड ऑफ द चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। लेकिन फोरसाइट सागा में प्राइमरीली वो सॉम्स फोरसाइट और उसके कजिन वो सिटी लाइफ, सिटी फैमिली को बिलोंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी? इट इज रिटन बाय अ ग्रेट ऑथर ऑन द लाइफ ऑफ फेलो ऑथर। ये तो बायोग्राफी होती है, ये करेक्ट नहीं। ग्रेट ऑथर बाय फेलो ऑथर, ये बायोग्राफी हो सकती है। जैसे जेम्स बॉसवेल ने डॉक्टर जॉनसन की बायोग्राफी लिखी। इट इज़ रिटन बाय स्कॉलर ऑन द लाइफ ऑफ फेलो स्कॉलर, अगेन ये बायोग्राफी हुई। चाहे वो ऑथर दूसरा ऑथर के बारे में लिख रहा है या स्कॉलर दूसरे स्कॉलर के बारे में लिख रहा है, अगेन दिस इज बायोग्राफी। इट इज़ ए मेमोर। मेमोर और ऑटोबायोग्राफी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेमोर अभी पहले बताया था आपको, मेमोर में बाकी एक्सपीरियंसेस, अदर डिटेल्स, अदर पर्सनेजेस, अदर इंसिडेंट्स दे कैन ऑल्सो इंक्लूड, बट इन ऑटोबायोग्राफी the person relates the life history of his own. The first fully developed autobiography is also the most influential. The Confessions of Saint Augustine, 4th century में ये फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी के फॉर्म में है। हालांकि ये फिक्शनल अकाउंट थी, फिक्शनल अकाउंट। Notwithstanding, it is an autobiography. The correct answer is D. Next question, Folder is a character in which of the following plays? बहुत famous play है, Justice बहुत फेमस कैरेक्टर है फोल्डर, सो इट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? अलोन, अलोन, ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड सी। द डोमिनेंट फिगर ऑफ स्पीच इज एसोनेंस, एज वी सी दैट एसोनेंस हैज द वॉवल साउंड, द रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स। अगर यहाँ पर देखेंगे, अलोन, हेयर, हेयर, ऑल मीन्स द साउंड अ, the sound a is repeated, and here wide c, I sound, and this one, so the answer is assonance. Next question, any short composition in prose that undertakes to discuss a matter, expresses a point of view, persuades us to accept a thesis or any subject, or and simply entertain, it is an essay. बायोग्राफी अभी बात कर ली, ऑटोबायोग्राफी की बात कर ली, ओट की भी बात कर ली। ये जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐसे के डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल फिट और मैच करता है।
प्राइमरी रिक्विजिट है ऐसे कि वो क्या है, इट शुड बी शॉर्ट एंड इट एक्सप्रेसेस अ पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ नेवर कंप्लीट। एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू ही डिस्क्राइब ये करता है। और इट इज़ सिंपली टू परसुएड अस, टू कन्विंस अस टू एक्सेप्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे बेकन के हैं, एजी गार्डिनर के हैं, सो वी मे और मे नॉट कंप्लाई देयर व्यू पॉइंट बट ही विशेज दैट वी शुड कंप्लाई, और प्राइमरीली दे आर फॉर सिंपल एंटरटेनमेंट। सो दिस आंसर इज ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट? अपोजिट मीन्स suitable. It is suitable, apt in circumstances or in relation. Next question, some statements have been given here for tragedy. It is representation of serious action leading to joyous conclusion for a tragic hero. How come a tragedy and in a joyous experiences for tragic hero? So it is not a fitting argument about tragedy. Tragedy है तो वो एंड में ट्रेजिक होना जरूरी है हीरो के साथ। ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ फियर एंड टेरर, फियर एंड पिटी। ये बिल्कुल फिट बैठती है। अगर एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट देखते हो सो क्या है वो, इट शुड अराउज द पिटी, द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर। द हेमर्शिया बिकम्स द रीजन फॉर हिज डिमाइज। ये भी एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट में फिट बैठती है। एवरी ट्रेजिक कैरेक्टर मीट्स हिज डूम, मीट्स हिज ट्रेजेडी बिकॉज ऑफ some missing the mark, some flaw in his character. So that flaw is called hamartia. दोनों ठीक हैं। The anagnosis in a tragedy is reversal in the fortune from happiness to disaster. Anagnosis is recognition, not reversal of fortune. Reversal of fortune क्या होता है? Peripetia. So ये भी आपका wrong है। The reversal of fortune is peripetia and recognition or discovery of some fact about the character. हालांकि दोनों साइमल्टेनियस इवेंट्स होती हैं लेकिन नेचर अलग अलग है, तो ये भी नहीं। करेक्ट आंसर आपका 2 and 3। 2 and 3 इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय जॉन गोल्सवर्दी? जस्टिस इज रिटन, सिल्वर बॉक्स इज रिटन, एप्पल कार्ड बाय G.B. शॉ, स्ट्राइफ इज ऑल्सो रिटन बाय जॉन गोल्सवर्दी। एप्पल से रिलेटेड क्या है उसका? The Apple Tree. Apple Tree is one of the short story by of 5 Tales. 5 Tales जो गोल्सवर्दी की है कलेक्शन, उसमें की 1 स्टोरी है The Apple Tree, और दोबारा से ये पब्लिश हुई थी। फर्स्ट टाइम इट वाज पब्लिश्ड इन 1916, सेकेंडली इट वाज पब्लिश्ड इन कारवां। ये कलेक्शन है 56 शॉर्ट स्टोरी का। सो एप्पल ट्री इज अ शॉर्ट स्टोरी जो कि सिमिलर है एप्पल कार्ट के दिखने में। एप्पल दोनों में है, कंफ्यूज नहीं होना। एप्पल कार्ट इज बाय G.B. शॉ। Next question, in William Wordsworth, The Solitary Reaper, Solitary Highland Lass is a girl from Scotland. Gaelic language भी है तो girl from Scotland. Next question, which of the following is not true? The term novel refers to prose fiction, बिल्कुल ठीक है। A prose narrative having characters and a plot, ये भी ठीक है। A treatise on current social problems, it is not a treatise, it is not an essay, it is not a treatise. It is a fictional narrative, a literary form that is derived from the Italian novella. Novel ऐसा ही बनी है इटालियन। narrative fiction है, fictional narrative है, prose fictional narrative है ये, और characters plots, it has everything, but it is not a treatise on current social issues. Next question, transform direct narration from the into indirect one. Ram said, how lovely this flower is. ये है exclamatory sentence को बनाना है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस में होगा? एक्सक्लेम जहाँ पे होगा वही होगा। ही सेड हाउ लवली, सेड वाला नहीं होगा, ये भी सेड वाला नहीं होगा। अब एक्सक्लेम वाले 2 हैं। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यहाँ तक बात ठीक है। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यहाँ पर भी बात ठीक है। अब देखते हैं दोनों में क्या है। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वॉज अ लवली फ्लावर। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट अ लवली फ्लावर वॉज। अब वर्ब बाद में तो नहीं आएगी, और यहाँ पे भी एक कमी है, दैट इट वॉज क्या होना चाहिए? राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ लवली फ्लावर। ये ज़्यादा इन सारे ऑप्शंस में सबसे करेक्ट यही है, हालांकि इसमें इट होना चाहिए। कमीशन इसको मानता है नहीं मानता है, क्या करता है वो बात की बात है, लेकिन आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस दिस इज द मोस्ट परफेक्ट वन विद सम इम्परफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू ऐसे। ऐसे
differs from treatise or dissertation in its lack of pretension to be systematic or complete exposition। बिल्कुल ठीक बात है। डिजर्टेशन और ट्रीटाइज क्या होती है, सिस्टमैटिक होती है, साइंटिफिक अप्रोच के साथ होती है, और उसका एक एम भी होता है दैट द पीपल हु आर रीडिंग दिस ट्रीटाइज शुड कंप्लाई, शुड कन्फर्म टू द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑथर। उनको ऐसा लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो सारे लोग माने उसको, लेकिन ऐसे डज नॉट हैव एनी दिस काइंड ऑफ क्लेम्स, ये भी ठीक है। एंड ऐसे प्राइमरीली डिस्कसेस इट्स सब्जेक्ट इन नॉन टेक्निकल फैशन, बिल्कुल ठीक है। नॉन टेक्निकल, ये एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस जो होती है, इनफॉर्मल जो अप्रोच होती है वो ऐसे की अप्रोच होती है, भी ठीक है। द ऐसे डिस्कसेज इट्स सब्जेक्ट्स विद द लिबरल यूज ऑफ सच डिवाइसेज एज एनेक्डोट्स, स्ट्राइकिंग इलस्ट्रेशंस एंड ह्यूमर टू आर्ग्यूमेंट इट्स अपील। आप ए जी गार्डनर के ऐसे पढ़ोगे, जोसेफ एडिसन के ऐसे पढ़ोगे, इन सब में आपको मिल जाएगा कि एक डिफरेंट एनेक्डोट्स होती है अपनी लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड, कुछ एनेक्डोट्स होती हैं। चार्ल्स लैम के ऐसे पढ़ोगे, कुछ लाइफ की हिस्ट्री से, कुछ जो छोटे मोटी इवेंट्स होती है उनको लेकर के, कुछ और एग्जाम्पल्स दे करके, ह्यूमर का यूज़ करके ऐसे लिखते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। द फॉर्मल ऐसे इज रिलेटिवली पर्सनल। अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, यही आपका आंसर है। फॉर्मल ऐसे हमेशा क्या होता है, इम्पर्सनल होता है। फॉर्मल तो इम्पर्सनल ही होगा, ऑब्जेक्टिव इन ट्रीटमेंट। पर्सनल क्या होगा, जो आपका इनफॉर्मल होगा। फॉर्मल जो होगा इम्पर्सनल, और पर्सनल जो होगा वो इनफॉर्मल। ये चीज आप देखिए, जो पर्सनल है वो इनफॉर्मल है, जो फॉर्मल है वो इम्पर्सनल है, इसलिए ये आपका फिट नहीं बैठता, यही आंसर है। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलिजी। ये क्वेश्चन पेस्टोरल एलिजी पे दोबारा से आता है। अब इसका आंसर होगा ये एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। हालांकि उसको हमने पहली बात नहीं माना, लेकिन एग्जैक्ट की बात चल रही थी, वहाँ पर अवेलेबल जो ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग ये था, लेकिन एस्ट्रोफल एग्जैक्ट एग्जाम्पल है पेस्टोरल एलिजी का। लेसिडास, थायरेसिस, दे आर परफेक्ट एग्जाम्पल्स और exclusive examples of pastoral elegy. Elegy written in country churchyard has some of the elements like background, pastoral background or mourning convention, but it is not exactly a pastoral elegy. बाकी सारी जो conventions हैं pastoral elegy के उनको बिल्कुल fit बैठती हैं। आपका आंसर इस क्वेश्चन में ये है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। फर्स्ट फोलियो, फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वाज एडिटेड बाय हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। लास्ट फेज में आप देखोगे तो टेम्पेस्ट, सिम्बलिन, विंटर्स टेल, ये सब लास्ट फेज के हैं। मच एडो अबाउट नथिंग वाज नॉट ऑफ द लास्ट फेज, इट वाज ऑफ द अर्ली पार्ट ऑफ डेवलपमेंट फेज। इट वाज पब्लिश्ड इन 1598। टेम्पेस्ट जो थी वो 1611 में पब्लिश हुई, रिटन हुई। सिम्बलिन जो 1610-11, विंटर्स टेल is also in 1610-11. So all these belong to the last phase, last experiment भी कहते हैं। Next question, which figure of speech do we see in the following expression? He was a good teacher but a poor student. Contradiction है, contradiction वाला कौन सा इसमें? Antithesis. Correct answer should be D. Next question, which figure of speech do we find in the following expression? 10,000 saw at a glance. ये बहुत famous example है hyperbole का। Next question, which of the following statements is correct about memoir? अब memoir, the emphasis is not on author's development or developing self, but on the people and events that the author has known. बिल्कुल फिट बैठती है ये, और ये करेक्ट, यही करेक्ट है। Memoir is another name for autobiography. It is similar to autobiography, not synonymous or other name for autobiography. Correct? Incorrect. Memoir is another name for biography. कैसे हो जाएगा? Memoir is always episodic and appears in ballad form. Ballad उलट का कोई चक्कर। Next question, which of the following works is not written by John Milton? Ode on the morning of Christ's nativity, ये अर्ली पोएम्स में से एक है, हालांकि कई बार अर्लीस्ट भी इसको कहते हैं। इट वॉज पब्लिश्ड इन 16, इट वॉज रिटन इन 1629। ऑन द लेट मैसेकर इन पीडमोंट, ये सोनेट नंबर 18, ये भी मिल्टन का है। इनर विजन किसकी है? वर्ड्सवर्थ की। ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, ये भी मिल्टन की है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द करेक्ट स्पेलिंग इज गायनेकोलॉजिस्ट,
GYNAECO, तो गायनाकोलॉजिस्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 170, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बैलेट। मेजर कैरेक्टर, इसका मतलब क्या है कि सारे ऑप्शंस जो हैं वो बैलेट को रिफर कर सकते हैं, लेकिन वन इज नॉट मेजर वन। इट टेल्स ए स्टोरी ऑफन विद अ म्यूजिकल अकम्पनीमेंट। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये फोकलोर ही बैलेट की फॉर्म को डेवलप करता है। तो फोकलोर क्या होते हैं, वो some people when they sing they can sing with the help of, they can sing with some musical instrument, ये भी करेक्ट है। It usually deals with a single episode। बैलेड शॉर्ट कंपोजिशन ही होती है, तो बैलेड सिंगल एपिसोड ही उसमें हो सकता है। एपिक लाइक तो होता नहीं है, इसलिए 50 उसमें एपिसोड्स होंगे। इट इज़ कॉमिक इन नेचर, इट मे बी कॉमिक इन नेचर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये एक नैरेटिव होती है, नैरेटिव पर्टिकुलरली अबाउट सम इवेंट, सम पीपल, तो स्लाइटली इट इज़ सीरियस इन नेचर। मे बी इट इज़ कॉमिक टू सर्टेन एक्सटेंट, बट इट इज़ नॉट एंटायरली कॉमिक इन नेचर। सो यही आपका आंसर होना चाहिए। द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग्स एंड एक्शंस। अब क्योंकि बैलेड है, फोकलोर्स हैं, तो वो डायलॉग्स भी होंगे, एक्शंस भी होंगे, वो सब कुछ हो सकता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं दिया हुआ है तो आपके पास क्या है, व्हाट से और फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और हाउ से और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस कैटेगरी में कौन से फिट हो रहे हैं, पहला नहीं हो रहा, दूसरा नहीं हो रहा, ये दो हो रहे हैं। हाउ ग्रेसफुल द राइटर इज इन टेलिंग द स्टोरी, हाउ ब्यूटिफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड। अब ब्यूटिफुली सेम वर्ड भी आपको रिप्रोड्यूस करने हैं, ये हो सकता है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म कर दिया इसने फर्दर, पूरे सेंटेंस की स्ट्रक्चर को भी, वर्ड्स भी रिप्लेस कर दिए, इसलिए इसको भी आप छोड़िए। हाउ ब्यूटीफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड, बस ये एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है एक्सक्लेमेशन में। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग इज इनवर्टिब्रेट, INVERTEBRATE, दिस वन, इनवर्टिब्रेट। TE, it is always TE, invertebrate. Invertebrate कौन होते हैं? It is a noun, an animal that lacks backbone. Invertebrate होते हैं। Next question, the correct spelling is OMELETTE, this one, B. Here, cuisine, QUISINE, cuisine, and diarrhea, DIARRHOEA. Next question, the characters Beatrice and Benedict, they appear in Much Ado About Nothing. As You Like It में भी important pairs हैं, just like Orlando and Rosalind. दूसरा pair और है As You Like It में, Touchstone and Aubrey. So the correct answer is C. Next question, which of the following is not a form of ode? Pindaric ode, we have Pindaric ode, strophe, antistrophe and epode. Thomas Gray के The Bard or the Progress of Poesy, they are the example of Pindaric ode. Horatian ode भी ode होते हैं, और Horatian कौन से होते हैं, short lyrics, they are short lyrics of 2 or 4 lines, 2 or 4 line stanza. They are the intimate reflection of poet, or they are basically addressed to a friend or love, beloved, just like, or some other person, जैसे कि एंड्रयू मार्वेल का famous example, एंड्रयू मार्वेल on Cromwell's written from Ireland, ये आपका होरेशियन ओड का एग्जाम्पल हो सकता है। जैकोबियन कोई नहीं होते, इरेगुलर, जैसे ओड ऑन इंटीमेशन, ओड ऑन इमोर्टेलिटी, तो इरेगुलर ओड भी होते हैं, होरेशियन भी होते हैं, पिंडारिक भी होते हैं। जैकोबियन ओड कुछ नहीं होता है, जैकोबियन ड्रामा हो सकता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा फॉर्म। पहले बता दिया था 6 लाइन स्टैंजा, वीनस एंड एडोनिस। इट इज रिटन इन सेस्टा राइमा, रेप ऑफ ल्यूक्रीस इन राइमा रॉयल। पैशनेट पिलग्रिम्स भी शेक्सपियर की ही पोएम है। इट इज एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर। So the correct answer is C. So that is all for now. I hope that the explanation and the answers of these questions will satisfy your queries. और मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको बिल्कुल सही से सही आंसर्स दिए जाएं। उनकी explanation, उनके logics, उनके reason why these answers were there and why I had to choose
दोज ऑप्शंस पूरी केयरफुल हो करके ये बनाई गई वीडियो. सो लाइक दिस वीडियो and share it among your friends so that other people, other aspirants, they also get their answers, and subscribe to the channel so that you keep receiving all such videos in future. Thanks for watching.